सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले इन योर लीगल एप्टीट्यूड। चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर लीगल एप्टीट्यूड दैट बेसिकली डील्स विथ एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग बेसिकली कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे बच्चों। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ company secretaries, key aspects of your company secretaries एक्ट 1980। ठीक है, क्या पढ़ने वाले? की एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। अब ध्यान देना, यहाँ पे तुमको मालूम है क्या सर, हमारा जो सीएस का प्रोफेशन है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोफेशन इज रेगुलेटेड थ्रू, कंपनी सेक्रेटरीशिप प्रोफेशन इज रेगुलेटेड थ्रू कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन इज रेगुलेटेड थ्रू, कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन इज रेगुलेटेड थ्रू योर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ठीक है सर, एंड ये चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले? हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों सम की एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस एक्ट। So I can say we are going to discuss about our profession in this particular chapter. ठीक है, we are going to discuss about our profession, company secretary profession, CS क्या करता है, ठीक है, या along with our mother institute, that is Institute of Company Secretaries of India। तो अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में, ठीक है, who we are company secretaries and about our honorable institute, about our honorable institute ICSI, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Company Secretaries of India। चलो अभी स्टार्ट करते पढ़ना, ठीक है। हाँ सर, देखो क्या लिखा, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट ICSI, is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. It is only the recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. Or I can say the profession of company secretaries in India can be regulated only by ICSI. The profession of company secretaries can be regulated only by ICSI. ICSI is the duly recognized body. ICSI is the duly recognized body to ICSI is only the recognized body in India to regulate the profession of company secretaries in India. Now, it is a premier national professional body set up under an act of parliament. एक्ट का नाम क्या बच्चों? द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ICSI functions under the jurisdiction of Ministry of Corporate Affairs, Government of India, and the institute provides top quality education to the students of company secretaries course and best quality set standards to CS members. At present there are more than 50,000 members. I can say members कौन होते हैं बच्चों? तो members है company secretary. One who becomes company secretary shall get the membership, can get the membership of ICSI. तो ICSI के अभी currently कितने members? More than 50,000 members and about 4 lakh student on roll of ICSI. तो अगर हम लोग current status check करें तो there are more than 50,000 company secretaries. There are more than 50,000 company secretaries and more than 4 lakh students, 4 lakh students of ICSI. Is it clear? Clear sir? हाँ sir. ICSI has its headquarter located at New Delhi.
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड 4 रीजनल ऑफिसेज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड दे हैव ओवर 70 चैप्टर्स। ये रीजनल चैप्टर्स की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अजमेर में भी है ना ICSI का ऑफिस है अजमेर में, तो दैट ऑफिस विल बी कंसिडर्ड एज that ICSI office will be considered as regional chapter of ICSI. Clear है? हाँ जी सर। ICSI has been contributing to the initiative of the government. ICSI has been contributing to the initiative of the government that have potential to excel in the social economic growth. That has potential to excel in the social economic growth of India. So I can say that ICSI is also contributing. I can say na that ICSI is also contributing in the social economic. ICSI is also contributing in the social economic growth of India. ये चैप्टर ना तुमको पूरा एक ओवरव्यू देने वाला है अबाउट योर CS प्रोफेशन, अबाउट योर मदर इंस्टीट्यूट कॉल्ड ICSI. क्लियर है बच्चों? यस. नेक्स्ट अब आ जाओगे ICSI का विजन, मिशन एंड मोटो. विजन, मिशन एंड मोटो. तो विजन, मिशन, मोटो पढ़ने से पहले हमको समझना रहेगा कि यार विजन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म विजन? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म विजन? एनीवन? कोई बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विजन? क्या मतलब होता है सर विजन? एनीवन? नहीं सर, देखो विजन का मतलब होता है वेयर वी वांट टू बी इन फ्यूचर. विजन का क्या मतलब होता है? वेयर यू वांट टू बी इन फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल अभी तुम लोग CSET के स्टूडेंट्स हो, लेट्स से तुम लोग का विजन हो सकता है कि यार वी वांट टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, वी वांट टू बी अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी इन फ्यूचर. तो बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी कैन बी योर विजन. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है. या किसी का विजन हो सकता है कि यार आई वांट टू अर्न 1 crore रुपीज पर एनम एंड फॉर दैट आई एम डूइंग CS. तो दिस कैन आल्सो बी अ विजन. फ्यूचर में आप किस लेवल तक जाना चाहते हो, फ्यूचर में आप कहां जाना चाहते हो, वो डिफाइन होता है आपके विजन से. ठीक है, तो मैं एक लाइन में लिख दूं यहां पे विजन का मतलब व्हाट वी वांट टू बी इन फ्यूचर. व्हाट डू वी वांट टू बी इन फ्यूचर, विजन. ठीक है. मिशन, मिशन का मतलब होता है व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट इज आवर करेंट बिजनेस. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज आवर करेंट बिजनेस, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं. तो विजन कैन बी, ठीक है, व्हाट वी वांट टू बी इन फ्यूचर. मिशन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. तो योर विजन कैन बी to be a successful company secretary, to become a successful company secretary. mission, mission क्या है? to clear your CSET exams. mission क्या हो सकता है बच्चों? to clear your CSET exams. तो ये क्लियर है डिफरेंस? हाँ. अब आ जाओगे ICSI का क्या विजन है. तो ICSI का विजन है टू बी अ ग्लोबल लीडर, टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? देखो कॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों कंपनी. ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी. और गवर्नेंस का मतलब होता है टू गवर्न. ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया? टू गवर्न अ कंपनी, टू गवर्न अ कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या मतलब हो गया? टू गवर्न अ कंपनी. अब पढ़ो उसका विजन, ICSI का विजन फिर से पढ़ो. वी वांट टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. मतलब वी वांट टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग governance of company. We want to be a global leader in promoting governance of company, or we want to be a global leader to govern a company in good manner.
ठीक है, टू गवर्न अ कंपनी इन गुड मैनर। ठीक है, अब यहाँ पे गुड मैनर का मतलब क्या हो सकता है? तो गुड मैनर का मतलब होता है टू गवर्न अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ द applicable, in accordance with the applicable provisions of laws, in accordance with the applicable provisions of laws on company। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ लॉज ऑन कंपनी। इज इट क्लियर? क्लियर बच्चों? हाँ सर। तो विजन है आईसीआईसीआई का टू प्रोड्यूस ग्लोबल लीडर्स और टू बी अ ग्लोबल लीडर्स इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल, आप जैसे लोगों को डेवलप करना, so that you can facilitate, so that you can facilitate or you can participate in good corporate governance, to develop or to prepare high caliber professional। ठीक है, अभी आईसीआईसीआई का मिशन है इंडिया में कंपनी सेक्रेटरीज बनाना। ठीक है, तुम जैसे स्टूडेंट्स को कंपनी सेक्रेटरीज बनाना। ठीक है, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हु कैन फैसिलिटेट, ठीक है, हु कैन फैसिलिटेट और हु कैन प्रोवाइड गुड कॉर्पोरेट, हु कैन फैसिलिटेट और हु कैन प्रोवाइड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्लियर बच्चों? मोटो, मोटो होता है अभी ऑब्जेक्टिव कि हमेशा सच बोलेंगे, स्पीक द ट्रुथ एंड वी विल अबाइड बाय द लॉ। अबाइड बाय द लॉ का मतलब है मेकिंग कंप्लायंस, मेकिंग कंप्लायंस ऑफ लॉ। ठीक है बच्चों, अबाइड बाय लॉ का मतलब मेकिंग कंप्लायंस ऑफ लॉ। तो आईसीएसआई का विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, मोटो क्लियर है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, कोर वैल्यूज। ठीक है, कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज का मतलब क्या होता है? आवर प्रोफेशन, ठीक है लिख लेना यहाँ पे, आवर प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। आवर प्रोफेशन इज मेनली बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। पहला है इंटीग्रिटी, एथिक्स, रिलायबिलिटी, ओनरशिप एंड बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक। बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक, मैं एक एक टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा सो दैट एक एक स्टूडेंट को कोर वैल्यूज समझ में आए। ठीक है, वी नीड टू फॉलो दीज कोर वैल्यूज बीइंग अ प्रोफेशनल। ठीक है, वी नीड टू अडॉप्ट दीज कोर वैल्यूज बीइंग अ प्रोफेशनल। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी वन मस्ट अडॉप्ट दीज कोर वैल्यू। ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चों ऑनेस्टी। मीन्स बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी we must be honest in all our dealings। ठीक है, we must be honest in our approach, we must be honest in our approach or in all our dealings। ethics यहाँ पे बोला we must focus, we must highly focus on ethical conduct of business, या ऐसा बोल सकते हो we must conduct ourselves, we must conduct ourselves ethically, we must conduct ourselves ethically। ये हो गया एथिक्स। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। रिलायबिलिटी मतलब हमको ऐसा वैल्यू डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर सो एज टू इंश्योर दैट सम अदर पर्सन कैन कैन impose his trust, can impose his trust on us। ठीक है, ओनरशिप एज वेल एज स्टेक होल्डर्स सेंट्रिक। स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है यहाँ पे इट मीन्स all such persons
all such persons having any kind of interest in the company, all such person having any kind of interest in the company. तो स्टेक होल्डर ना एक वाइडर टर्म होता है बच्चों. स्टेक होल्डर में आपको शेयर होल्डर आ जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर आ जाएगा. ठीक है, स्टेक होल्डर्स में कंपनी के मेंबर्स आ जाएंगे, शेयर होल्डर मेंबर एक ही होते हैं. देन क्रेडिटर्स आ जाएंगे. ठीक है, देन जनरल पब्लिक भी आता है और सोसाइटी आ जाएगा, अथॉरिटीज आ जाएंगे. स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म. ठीक है, तो बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करते हैं ना कि कंपनी अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहा है कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट्स और द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. बीइंग स्टेक होल्डर सेंट्रिक का मतलब है fulfilling the expectations. ICSI must be fulfilling the expectations of all its stakeholders. मैंने कंपनी के रेफरेंस में वो टर्म यूज किया था. आईसीएसआई के स्टेक होल्डर्स कौन होंगे? आईसीएसआई का स्टेक होल्डर होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज, आईसीएसआई का स्टेक होल्डर होगा स्टूडेंट्स. ठीक है, आईसीएसआई का स्टेक होल्डर होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज या आईसीएसआई के स्टूडेंट्स. इज इट क्लियर? ठीक है, अभी ये टर्म डिस्कस किया आपके साथ. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. क्लियर है बच्चों? इंटीग्रिटी का मतलब था ऑनेस्टी, एथिक्स का मतलब था कंडक्ट सेल्फ एथिकली, रिलायबिलिटी मतलब वी मस्ट बी रिलायबल इनफ so that someone can repose his trust or repose his confidence on us, ownership as well as being stakeholders centric. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तुम लोगों का ना एग्जाम आईसीएसआई ने पोस्टपोन कर दिया था. ठीक है, योर सीएसईटी एग्जाम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड बाय द आईसीएसआई. ठीक है, दैट डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द आईसीएसआई in the interest of its stakeholders. That decision has been taken by the ICSI in the interest of its stakeholders. Sir, being a student we are the stakeholders. बिल्कुल, being a student you all are the stakeholders of ICSI. तो ICSI will make all its efforts. ठीक है, ICSI will make all its efforts to meet the expectations or to meet the requirements of all its students, of all its members. Then ऑफ ऑल दी अथॉरिटीज जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस रिपोज किया किसके ऊपर? आईसीएसआई के ऊपर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो बच्चों. हाँ जी सर. अच्छा, एक चीज और, आईसीएसआई किसके जुरिस्डिक्शन में काम करता है बच्चों? आईसीएसआई किसके जुरिस्डिक्शन में काम करता है? तो अभी पढ़ा था तुम लोगों ने. आईसीएसआई कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एमसीए. ठीक है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ Corporate Affairs. ICSI comes under the jurisdiction of MCA, that is Ministry of Corporate Affairs. Clear है? हाँ जी सर. आ जाओगे. पहला component integrity. The ICSI's vision to be a global leader in promoting good corporate governance is a promise to the nation. It cast upon the ICSI and the profession of company secretaries a huge responsibilities to deliver upon the promise. ठीक है, आईसीएसआई के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टू प्रमोट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. चलो आगे बढ़ने से पहले मैंने तुम्हारे साथ एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस कर ही लेता हूँ बच्चा. अभी काफी देर से मैं सोच रहा था नहीं करूं, लेकिन ये टर्म्स बार बार आने वाला है तो लेट अस डिस्कस. देखो बार बार ना तुम एक वर्ड सुनने को मिलेगा तुमको, कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सर अभी आप लोग बता के आए ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है टू गवर्न अ कंपनी. बिल्कुल, टू गवर्न अ कंपनी. अब ना थोड़ा सा इन डेप्थ अपन पढ़ते हैं इसको, ये कंसेप्ट को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ते हैं. तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग स्लाइड पे ले लेता हूँ. विजिबल है? हाँ सर बिल्कुल विजिबल है.
थोड़ा सा आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव बना देते हैं। चलो ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर, ध्यान देना। तो सर ने लिखा, एक टर्म लिखा सर ने, क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इसका क्या मीनिंग बताया सर ने? कॉर्पोरेट का मतलब क्या बताया सर ने? तो कॉर्पोरेट का मतलब था सर कंपनी, एंड गवर्नेंस का मतलब टू गवर्न। ठीक है, कंपनी एज वेल एज टू गवर्नेंस का मतलब टू गवर्न। अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मोस्ट स्पेसिफिकली क्या मतलब निकलने वाला है? इट मीन्स टू गवर्न अ कंपनी। इट मीन्स टू गवर्न अ कंपनी in such a manner so that the needs and expectations, to govern a company in such a manner so that the needs and expectations of each and every stakeholders of company, so that the needs and expectations of each and every stakeholders of company gets fulfilled. ये कंसेप्ट ना बच्चों ध्यान रखना है तुमको, फाइनल्स तक पूरी जिंदगी भर ये ध्यान रखना है। अगर सीएस प्रोफेशन की अगर अपन बात करें तो सीएस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस। जहां पे गुड गवर्नेंस की बात होगी वहां पे कंपनी सेक्रेटरीज की बात होगी, जहां पे गुड गवर्नेंस की बात होगी वहां पे सीएस प्रोफेशन की बात होगी, जहां पे गुड गवर्नेंस की बात होगी वहां पे बात होगी हमारे आईसीएसआई की। इज इट क्लियर? तो यू नीड टू रिमेंबर दिस कंसेप्ट, लाइफ लॉन्ग बेसिस पे याद रखना है। गुड गवर्नेंस का मतलब या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब टू गवर्न अ कंपनी, कुछ इस तरीके से कंपनी को मैनेज किया जाए। टू गवर्न अ कंपनी इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से कंपनी को मैनेज किया जाए सो दैट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, so that the needs and expectations of each and every stakeholder, so that the needs and expectations of each and every stakeholders of the company gets fulfilled. अच्छा, ये स्टेक का मतलब क्या था? स्टेक का मतलब क्या था? एवरी पर्सन having any kind of interest, every person having any kind of interest associated every person having any kind of interest associated with the company. बात समझ में आ रहा है क्या? यह है कंसेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब आगे देखोगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब टू गवर्न अ कंपनी सच अ मैनर सो दैट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरी स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी गेट्स फुलफिल्ड। अब थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मान लो कि यार एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या? ए लिमिटेड। अब मुझे बताओ कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होंगे? तो कंपनी का स्टेक होल्डर होगा सर कंपनी के कस्टमर्स, ठीक है। कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे सर कंपनी के क्रेडिटर्स, ठीक है, ठीक है सर। कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे सर कंपनी के इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंपनी के इन्वेस्टर्स। देन कंपनी के स्टेक होल्डर्स होंगे सर अथॉरिटीज, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, ठीक है, लाइक जीएसटी काउंसिल, लाइक इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इनको भी तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एसोसिएटेड है। कंपनी बिजनेस करके पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाएगा उस पर क्या देना पड़ेगा कंपनी को? टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। देन कंपनी का स्टेक होल्डर होगा सोसाइटी, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट कैसे एसोसिएटेड है सर? तो जनरल पब्लिक एक्सपेक्ट करता है कंपनी से दैट अ कंपनी कंडक्ट इट्स बिजनेस in a environmental friendly manner, that a company conduct its business in a environmental friendly manner। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स कंपनीज के डेटास भी हो सकता है सर, ठीक है। अब समझो कस्टमर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी के साथ। बीइंग अ कस्टमर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी से?
कि कंपनी हमें बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कराए एट दी मिनिमम पॉसिबल प्राइस। बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी तुमको दे मिनिमम प्राइस पे। इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करता है? इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करता है कि उसको हायर रिटर्न मिले। अथॉरिटीज क्या एक्सपेक्ट करता है? अथॉरिटीज एक्सपेक्ट करता है कि यार कंपनी उनके ऊपर एप्लीकेबल होने वाले सभी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे व्हाइल कंडक्टिंग देयर बिजनेस। डेटर्स क्या एक्सपेक्ट करता है? डेटर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उनको प्रॉपर क्रेडिट पीरियड अलाउ करे। क्रेडिटर एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी उसको प्रॉपरली पेमेंट करे, टाइमली पेमेंट करे। सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैनर में अपना बिजनेस कैरी आउट करे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये सभी स्टेक होल्डर्स, इन सभी का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड है विद एनी कंपनी। और यहाँ पे कंपनी कौन सा? ए लिमिटेड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हो गया कि यार कुछ इस तरीके से अपने कंपनी को मैनेज करो, कुछ इस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज करो कि इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाओ। कुछ इस तरीके से अपनी कंपनी को मैनेज करो सो दैट इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाओ, इन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर पाओ। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। तो इसी को अपन ने नाम दिया टर्म कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक्सक्यूज मी। ठीक है सर, तो एक कंसेप्ट क्लियर है आपको? मैनेजिंग योर कंपनी इन सच अ मैनर सो दैट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड विद द कंपनी गेट्स फुलफिल्ड। और वो कैसे पॉसिबल है बच्चों? तो सर वो पॉसिबल है व्हेन अ कंपनी कंडक्ट इट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्हेन अ कंपनी कंडक्ट इट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द कंप्लायंसेस ऑफ लॉ या इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। ठीक है, एंड और कंपनी इज फॉलोइंग बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस, कंपनी इज फॉलोइंग बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस टू कैरी आउट इट्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बेटा ये इंश्योर करेगा कंपनी में, ठीक है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमोट करेगा कंपनी के अंदर। कौन? कंपनी सेक्रेटरी। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, यू आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, यू आर प्लेइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन ensuring or in promoting corporate governance in any company। बात में आ रहा है? तुम्हारे बिना कंपनी में गुड गवर्नेंस में नॉट बी पॉसिबल। मैं तो बोलता हूँ कंपनी सेक्रेटरी ना इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। जैसे हमारी बॉडी में जो रोल बैकबोन का होता है ना, वही रोल एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का होता है। ठीक है, वही रोल एक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी का है। इज इट क्लियर? You should take pride in yourself for opting this profession। चलो आगे आ जाते। Profession of company secretaries has a huge on dash integrity पे थे, has a huge responsibility to deliver upon the promise with the objectivity and integrity as core value. There is no middle path to integrity। The word integrity is derived from the Latin word integer. It means the whole or complete। In this context, integrity comprises the personal inner sense of the wholeness deriving from the character, courage and consistency। As integrity conveys a sense of wholeness and strength, members shall be guided by a set of core principles that will empower them to remain consistent or to remain honest। चाहे कोई भी सिचुएशन अराइज हो जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन अराइज हो जाए, we will remain honest, we will practice integrity in all our dealing, we will maintain the integrity of our profession। ठीक है, with huge standards wise compassion, dependability, generosity, honesty, openness, transparency, loyalty, maturity, objectivity, trust and wisdom। We are going to adopt all these things in ourselves while carrying out our profession। ठीक है, और while practicing our CS profession। Is it clear? Ethics, यहाँ पे बोला गया कि we will maintain high ethical standards, high ethical value। ठीक है, we will maintain high ethical standards और high ethical values while conducting ourselves as a CS professional। ठीक है, देखोगे यहाँ पे
क्या लिखा गया, द टर्म एथिक्स। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें एथिक्स का क्या मतलब होता है, ये टर्म एथिक्स का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर। इन जनरल अगर अपन बात करें एथिक्स का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर इज बेसिकली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल बिलीफ। तुम्हारा जो कैरेक्टर होगा ना, वो डिपेंड होगा किसके ऊपर, तुम्हारे सेट ऑफ पर्सनल बिलीफ पे, किसी चीज के बारे में तुम क्या सोचते हो। ठीक है, तुमने सीएस प्रोफेशन ऑप्ट किया बिकॉज इट इज योर पर्सनल बिलीफ, इट वॉज योर पर्सनल बिलीफ कि बाय बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी, बाय बीइंग अ सीएस, तुमको लाइफ में वो सारे अचीवमेंट्स मिलने वाले जो तुम डिजर्व करते हो, या तुमको लाइफ में वो सब कुछ मिलने वाला है जो तुम एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ से। ये तुम्हारा सेट ऑफ पर्सनल बिलीफ है, दैट्स व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस प्रोफेशन, इट इज योर सेट ऑफ पर्सनल बिलीफ। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेट ऑफ पर्सनल बिलीफ एक पर्सन बहुत हाईली सक्सेसफुल होता है और एक पर्सन टोटल फेलियर होता है, एक पर्सन टेररिस्ट बन जाता है, एक पर्सन प्रीस्ट बन जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, मैं एक जनरल डिस्कस कर रहा था क्या, दिस टर्म एथिक्स, ethics defines the character, basically what is an ethics, what is ethics, a set of personal belief, ठीक है, या पर्सनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच गाइड अर बिहेवियर। मुझे लगता है कि पढ़ाने में ज्यादा मजा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को लगता है कि मर्डर करने में ज्यादा मजा है इसलिए वो मर्डर कर रहा है, किसी को लगता है कि यार भगवान की भक्ति में ही मजा है तो वो प्रीस्ट बन गया, किसी को लगता है कि डॉक्टर का प्रोफेशन सबसे बेस्ट है इसलिए वो डॉक्टर बनने के लिए गया। बात समझ में आ रहा है क्या, तुम्हारे बैच में भी काफी स्टूडेंट ना सीए कर रहे होंगे, उनको लगा होगा कि यार सीए में मजा है तो सीए कर रहे, तुमको लगा कि सीएस में मजा है तुम सीएस कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि नहीं नहीं सीए सीएस किसी में भी मजा नहीं है, कॉलेज लाइफ में मजा है तो कॉलेज लाइफ जिएंगे वो। बात समझ में आ रहा है क्या, इट इज, जो भी तुम कर रहे हो ना, इट ऑल बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर एथिकल वैल्यूज, the way you are conducting yourself, the way you are conducting yourself is all because of your ethical values, is all because of your personal set of principles। clear है, हाँ sir। the term ethics has its origin from a Greek word ethos which means character or customs, the distinguishing character, moral nature or guiding belief of a person, institution or group। ethics in its simplest form means possessing a wrong a sense of, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि what is right and what is wrong, whatever is, yes, right is ethical, whatever is not is unethical। क्या बोला यहाँ पे, what is, whatever is right is ethical, whatever is not is unethical, in other words ethics is the sense of right and wrong coupled with a desire to do good in some measure for someone, a sense of assuming, ठीक है, a sense of assuming तो नहीं बोल सकते, a sense of determining, ethics means a sense of, यहाँ पे बोला गया a sense of determining कि you should be in a position to determine, you being a professional, being a company secretary, you should be in a position to determine what is right and what is wrong for you। The ICSI has built on the principles of ethics and its members continuously strives to promote ethical excuse me, its members strives or making an effort to promote ethical practices and hold the profession in high esteem, which is integral, which is very important in maintaining, here to maintaining quality and reputation of both ICSI and its member। क्या बोला गया कि ICSI ने क्या किया, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिफाइन किया, ठीक है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स डिफाइन किया किसके लिए, मेंबर्स के लिए। and all the members of ICSI, members of ICSI कौन होंगे बेटा, कंपनी सेक्रेटरीज, all the members of ICSI are expected to follow these set of principles as framed by the ICSI so as to ensure that they are going to maintain the quality, they are going to maintain the quality and reputation of both ICSI as well as
the profession of CS. Is it clear? Then being stakeholder centric का मतलब, being stakeholder centric का मतलब देखना यहाँ पे, the ICSI, its members and the team ICSI pledge, कसम खाते हैं, to uphold the established principles of professional ethics. हम कसम खाते हैं we are going to follow the principles of professional ethics, values and standards, and we will always promote honesty and transparency in all our behavior, practices and processes. चाहे कुछ भी हो जाए, we are going to follow or we are going to promote transparency in all our behavior, practices or processes. Is it clear? This is what expected from us. This is what expected from us being a company secretary. This is what expected from us being a company secretary or being a member of a reputed institute, highly reputed institute, ICSI. Clear बच्चों? हाँ sir. Then reliability. Reliability is an assurance of the quality of services and the commitment. Reliability का मैंने मतलब बताया था. In general, the other person can impose his trust or confidence on us. कि अगर हमारी सर्विसेज लेने के लिए आया तो he is going to get the best of the services possible. He is going to get the best of the services possible. ठीक है. और वो सर्विसेज मेनली किसके रिलेशन में हो सकता है? वो सर्विसेज हो सकता है मेनली इन रिलेशन टू दी कंप्लायंस मैटर्स. ठीक है. वो सर्विसेज हो सकते हैं मेनली इन रिलेशन टू दी कंप्लायंस मैटर्स. Reliability is an assurance of quality and commitment. At the ICSI, the reliability is a core value reinforced by the stringent process. Reliability is an assurance of quality. We are going to assure the quality of our services, quality of service and commitment. At the ICSI, reliability is a core value which is reinforced by the stringent processes, especially focusing on the quality of service, predictability and reliability. The value are an intrinsic component of work culture and sustainable growth. Quality and predictability through commitment and value added services is what would be the strongest USP of the ICSI and its members. Okay? We shall continuously build on reliability as our core values for its sum total of quality services to our stakeholders. देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, it is expected from us, ठीक है, it is expected from us to give the best services by a client, and we should, ठीक है, as a member of ICSI, we should uphold या meet the expectations of all our clients. We should meet the expectations of all our clients. We should uphold the expectations of all our clients. We should increase the reliability. We should increase the reliability of our clients. Reliability on our services of our clients. ठीक है, वो कब पॉसिबल है? वो पॉसिबल है जब हम बेस्ट ऑफ दी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मान लो कि अभी कोई स्टूडेंट, अभी जो भी स्टूडेंट ये CSET के लेक्चर्स हमसे पढ़ रहे, ठीक है, across India students are going for the lectures, students are purchasing lectures from our institute. Now they have casted a responsibility upon us, ठीक है, they have casted a responsibility upon us. उन्होंने ये सोच के lectures purchase किया that they are going to get the best of the qualities, they are going to best of the qualities across India. It becomes a moral responsibility, ठीक है, being a faculty, it becomes my moral responsibility to ensure कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है या जो भी स्टूडेंट मेरे लेक्चर्स परचेज कर रहा है, they should get the best of the quality, they should get the best of the qualities possible across India. Then only it is going to increase, then only it is going to increase the reliability of student on us. समझ रहे हो? Then only it is going to increase the reliability of student upon us. Now, moving on to the next part, ownership. Ownership is synonymous with the responsibility. We should take the responsibility, accountability and empowerment. The idea of ownership is much more than a simply willingness to accept own criticism, deficiency or oversight. It is more about setting one's priority, placing rightful obligation on others,
as high as obligations to itself. To be responsible is to always to do the right things in the eyes of the valued stakeholders and the public at large. It is to value the trust and confidence stakeholders put in them. It is about the commitment to keep a promise or to make right some unintentional wrong, even when it is inconvenient to do so. Ownership being one of our core values. देखो यहाँ पे बोला गया, इस पॉइंट का मैं तुमको मतलब लिखवा देता हूँ, है ना, ध्यान देना. यहाँ बोला गया है कि भाई जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर रिपोज की गई है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर रिपोज की गई है, वी मस्ट बी इन अ पोजिशन टू टेक the responsibilities. We must be in a position to take all such responsibilities. We must be in a position to take the accountability. We must be accountable enough. We must be accountable enough towards all the responsibility imposed upon us. Okay, we must be accountable enough towards all the responsibilities imposed upon us. We need to be accountable. Is it clear? Is it clear? That will automatically reduce the risk. That will automatically increase the level of efficiency. Okay, and that will automatically contribute towards goodwill, reputation and brand image of the institute and the profession. Being a company secretary, अगर आज मैं accountability लेता हूँ, responsibility लेता हूँ for providing the best of the services possible, और अगर मुझसे कुछ गलती हो भी गया, ठीक है, ह्यूमन मेड एरर पॉसिबल है ना, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती है, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. पहले तो मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करूंगा एंड देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स. ठीक है, आई शुड डेवलप सच काइंड ऑफ अप्रोच. I should develop such kind of approach while practicing my profession. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट मुझसे लेक्चर्स परचेज कर रहे हैं, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई विल बी अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट. आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर रिजल्ट. मैं इंश्योर करूंगा कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शैल गेट पास इन द एग्जाम. जो भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर्स परचेज कर रहे हैं, हमको इंश्योर करना है, वी नीड टू इंश्योर इट that whosoever is purchasing our lectures is going through our classes, we will deliver the best content. We will deliver the best content and we will ensure कि हर एक स्टूडेंट क्या हो, क्लियर हो जाए एग्जाम्स. बस समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? हाँ सर. Then being stakeholder centric. Stakeholder is our most valued constituency when it comes to being able to achieve our goal. We believe in constant stakeholder consultation and in translating their aspirations into achievable goals. We take pride in having a transparent and stakeholder focused approach, in having a trustworthy and collaborative relationship with them. मतलब ICSI क्या करेगा? ICSI यहाँ पे बोला गया, ICSI will consider the interest और ICSI will take the opinion from all its stakeholders. ICSI के जो भी stakeholders हैं उनसे ICSI opinion ले सकता है, उनके concern को सुन सकता है. And ICSI will try its level best. ICSI will try its level best to address the concerns of all such stakeholders of the ICSI. बात समझ में आ रहा है क्या? We will try our level best to fulfill all the needs or to fulfill all the expectations of our stakeholders. बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी सर. It will be our endeavor. Endeavor का मतलब होता है क्या? To make efforts, to constantly activate new channels. हमेशा कुछ नया प्लान करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. And pathways to not only meet but also beat the expectations of our stakeholders. We will try our level best not only to meet the expectations of our stakeholders. हमको कुछ ऐसा करना है which is not being expected from our stakeholders. मान लो कि तुम लोगों ने क्लास लिया होगा, तुम लोगों ने सोचा हो कि हाँ यार अच्छा ही पढ़ाते होंगे. जब तुम लोगों ने क्लास को गो थ्रू किया तो तुम लोगों को क्या माइंड ब्लोइंग क्लासेस है यार. एग्जीक्यूटिव भी यहीं से लेना है या प्रोफेशनल भी यहीं से पढ़ना है, हो सकता है. तो इन दैट केस अगर तुम अगर ऐसा ओपिनियन फॉर्म कर पा रहे हो कि क्या माइंड ब्लोइंग पढ़ा रहे हैं सर यार, क्या गजब क्लासेस लिए, जबरदस्त पढ़ाते हैं,
In that case, in that situation, we are not only meeting your expectations, we are also beating your expectations. Is it clear? Haji sir. This window into the future will help us to achieve sustained performance and growth of ICSI as well as growth of CS profession. जब तक हम हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को मीट करते रहेंगे, इवन उनके इंटरेस्ट को, उनके एक्सपेक्टेशंस को बीट करते रहेंगे, तब तक क्या there will be more possibility of continuous sustenance or performance or growth of our institute as well as growth of our CS profession. ठीक है बच्चों? हाँ जी सर. तो अभी तक तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा किसके बारे में? ICSI के बारे में, देन प्रिंसिपल्स ऑफ ICSI के बारे में. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. कंपनी सेक्रेटरी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी कौन? कंपनी सेक्रेटरी हम नहीं, तुम नहीं हो, यू ऑल आर फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज. ठीक है, यू ऑल आर फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, सेक्शन 1 नहीं है रे यार, क्या बोल रहे हो सर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 1 C of the Company Secretaries Act 1980, company secretary means a person who is a member of Institute of Company Secretaries of India. Company secretary कौन? तो company secretary means a person who has got the membership. तुमको मालूम, जब तुम CS कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम लोग का प्रोफेशनल पास हो जाएगा, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा, सारा ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो जाएगा, then you will be awarded with a membership of ICSI or you will be admitted to the membership league of the ICSI. तो जिस दिन तुमको मेंबरशिप मिला उस दिन तुम लोग बन गए क्या? कंपनी सेक्रेटरी. The role of company secretary is defined in various other legal enactments. और enactments का मतलब क्या होता है बच्चों? In various other acts. Under the Companies Act 2013, company secretary has been defined under section 2 clause 24 as company secretary, or secretary means a company secretary as defined under section. देखो कंपनीज एक्ट में क्या बोला? कंपनीज एक्ट सेक्रेटरी का मतलब क्या? तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वो जो डिफाइन किया गया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में. तो अगर मैं कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन की बात करूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या? तो कंपनी सेक्रेटरी का मतलब वो जो डिफाइन किया गया है किसमें? अंडर द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. ठीक है, हाँ सर. एंड हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013. फिर देखो, कंपनी सेक्रेटरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सोनल. की मैनेजरियल पर्सोनल, वी हैव बीन गिवन विद द स्टेटस ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल. समझो कितने इंपॉर्टेंट है हम लोग किसी भी कंपनी के लिए. ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट को तुमको पढ़ना रहेगा अलॉन्ग विथ रूल 8 of companies appointment and remuneration of managerial personnel rules 2014. It provides that every listed company, हर listed company and every other public company. तो क्या बात किया? पहले बोला every listed company, ठीक है, as well as every other public company जो listed नहीं है. ऐसे public company जो listed नहीं है. सर listed company कौन सी कंपनी होती है? तो बेटा लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी whose shares are listed on any of the recognized stock exchanges of India. ठीक है, अभी के लिए इतना जानो क्योंकि अभी हम छोटे हैं ना. हाँ सर. लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या? तो लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी whose shares are listed on any of the recognized stock exchanges of India. तो बोला या तो अगर कंपनी लिस्टेड है या कोई भी दूसरा पब्लिक कंपनी whose paid up capital, whose paid up capital is 10 crore or more. Every other company whose paid up capital is 10 crore or more. ठीक है, लिखा है. Shall have the following whole time key managerial personnel. देखो कंपनी सेक्रेटरी KMP के डेफिनेशन में आ रहा था, तो और यहाँ पे क्या बोला गया? ऐसे सभी लिस्टेड कंपनीज या ऐसे सभी पब्लिक कंपनीज जो अनलिस्टेड है प्लस
दे पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर, तो ऐसे सभी कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड सीएस इज ऑल्सो कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ केएमपी, उसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ दे आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट होल टाइम सीएस। होल टाइम सीएस कौन होता है बेटा, तो बेटा होल टाइम सीएस का मतलब होता है हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अरे यार रोज जॉब पे आना है उसको, रोज काम करना है 9 से 5, ठीक है। अच्छा, इन कंपनीज को होल टाइम केएमपी रखना है। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ और मैनेजर, बोले या तो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रहेगा, एक्सक्यूज मी, एक सेकंड मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, जस्ट वेट। या तो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर, इन तीनों में से कोई एक, और तीनों नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। हाँ सर। देन कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरीज का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है, कौन सी कंपनीज के लिए, या तो लिस्टेड कंपनी हो या दूसरे पब्लिक कंपनी हुज पेड अप कैपिटल इज, अदर पब्लिक कंपनीज हुज पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़ और मोर is mandatorily required to appoint a whole-time company secretaries, ठीक है। हाँ सर। And chief financial officer, according to Rule 8A of the Company's Appointment and Remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, every private company which has a paid-up capital of 10 crore or more shall also have a whole-time company secretary। तो अभी तक ना रूल 8 में हमने पब्लिक कंपनीज की बात की थी और वहां पे अपन ने बाइफर्केशन किया था, public company which is listed, public company which is not listed. The public company which is listed is required to appoint a whole-time company secretary. Public company which is not listed but having a paid-up share capital of 10 crore or more is also required to appoint a whole-time company secretary. नीचे तुमको बोला कोई प्राइवेट कंपनीज भी, ऐसा कोई प्राइवेट कंपनीज भी जिसका पेड अप कैपिटल कितना 10 करोड़ या उससे ज्यादा, having a paid up capital of 10 crore or more is also required to appoint a whole time company secretary. Is it clear? हाँ जी सर। Then functions of company secretary क्या काम करता है, the functions of company secretary shall include, company secretary will report to the board, board का मतलब यहाँ पे बच्चों board of directors, कंपनी का board of director। तो कंपनी सेक्रेटरी रिपोर्टिंग करेगा किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किस क्या रिपोर्टिंग करेगा सर, अबाउट द कंप्लायंसेस। बेटा सर कंप्लायंसेस का क्या मतलब होता है, कंप्लायंसेस का मतलब होता है टू फॉलो, कंपनीज के ऊपर जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है ना, जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है ना, उन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंपनी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका रिपोर्टिंग करेगा कौन, कंपनी सेक्रेटरी। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देखो लिखा है टू रिपोर्ट टू द बोर्ड अबाउट द कंप्लायंसेस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द रूल्स मेड देयर अंडर एंड एनी अदर लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी, as well as company secretary will ensure that the company complies with applicable secretarial standards। कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करेगा कि कंपनी क्या फॉलो कर रही है बच्चों, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होता है सर, हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सुना है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नहीं सुना, आप बताओ सर क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या सुना तुम लोगों ने, क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस होता था सर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। हाँ बेटे बिल्कुल सही बोले तुम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या होता था, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सॉरी। इन द सेम मैनर, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या होगा बेटा, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का पर्पस होगा टू ब्रिंग uniformity, to bring uniformity in the secretarial practices, to bring uniformity in the secretarial practices। clear है बच्चों, is it clear, to bring uniformity in the secretarial practices। आजो में आगे, हाँ then to discharge such other prescribed duties, बोला ये दो काम तो करना ही है, इसके अलावा भी apart from these responsibilities
अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए बोलता है, किसको, सीएस को, देन ऑल्सो दे आर रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज ऑल सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। सो बेटा लेफ्ट ओवर पोर्शन वी विल डिस्कस इन द next class. In the next class we will try to complete this chapter. For the time being इतना हम लोग रखते हैं डिस्कशन को, आप लोग इतना पढ़िए before coming into the next class. That's all for today's class. Thank you so much. Take care of yourself. Take a good care of yourself. Bye bye.